So students, now move to the next topic, which is circulatory system. The heart, blood and blood vessels, fine thin tubes make up our circulatory system. The heart pumps blood to all the parts of our body through blood vessels. Now let's see the circulatory system. Students, जो ये आपका circulatory system होता है, it contains the three main part: heart, blood and blood vessels. Blood vessels are the thin tubes, thin and fine tubes, you can see in the picture. So students, these three things together makes our circulatory system. Every time the heart pumps the blood vessels carry the blood to the all parts of the body. The heart pumps blood to all parts of our body through blood vessels. Okay, so students, our heart pumps blood to all the parts of our body through blood vessels. यानी blood vessels के थ्रू हमारा जो हार्ट है वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है. Now we will read about the reproductive system. This system consists of organs that help to produce babies. You will learn more about this in your higher classes. So students, the reproductive system helps to produce young ones. यानी reproductive system जो होता है वो human beings को अपने ही kind के babies को birth करने के लिए help करता है. ओके, सो इसकी हेल्प से ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने काइंड के यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं. सो लाइफ ऑन द प्लानट अर्थ गोज ऑन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली. यानी हमारी अर्थ पर ये जो लाइफ है ये किसी की वजह से कंटिन्यू चलता रहता है ये प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. ओके, सो जब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अपने काइंड के ओन बेबीज़ को बर्थ करते रहते हैं तो ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है. ओके, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम इन योर हायर क्लासेज. इससे ज़्यादा आप इसके बारे में हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे. ओके, now read this fact. The average rate of heartbeat is 72 times per minute. We cannot live if our heart stops beating. So students, जो हमारा हार्ट है उसकी पंपिंग करने की हार्ट बीट की एवरेज क्या होता है, एवरेज रेट होती है 72 टाइम्स पर मिनट. यानी हर मिनट में अगर वो 70 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है. ओके, और अगर हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे सो वी कैन नॉट लिव, तो हम जी नहीं पाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस पार्ट वी विल रीड अबाउट द excretory system. Okay, the excretory system. Waste is removed regularly every day from our body through the organs of the excretory system. Kidneys remove urine, skin removes waste in the form of sweat, and the lungs expel carbon dioxide. You can see the diagram of excretory system. So now we will learn about the excretory system. Excretory system helps us to purify the blood. The main organs of the excretory systems are kidney, urethra and urinary bladder. Okay, the kidneys remove urine. Okay, and skin removes waste in the form of sweat. Kidneys filter the blood, and then these thin pipes are called urethras. The urine passes through urethras, यानी urethras के थ्रू यूरिन पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. एंड इन द यूरिनरी ब्लैडर the urinary bladder is emptied by the body. And what is the function of urinary bladder? The urinary bladder is emptied by the body at regular intervals. यानी थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स के बाद, आप सब बच्चों को पता है, आप हमें कुछ देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है. ओके, फॉर द टॉयलेट. सो द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टाइड बाय द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स. यानी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिथ्रास के थ्रू जो टॉयलेट है वो कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में. एंड आफ्टर रेगुलर इंटरवल वी विल थ्रो आउट द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. ओके, I hope the function of excretory system is now clear to everyone. Did you know, students, sweat is a waste thrown out by the skin. That means sweat is also a kind of waste
विच इज़ थ्रोन आउट बाय द स्किन, यानी हमारी बॉडी पर जो स्वेटिंग होती है वो भी एक टाइप का वेस्ट है जिसको स्किन के थ्रू हम अपनी बॉडी से आउट करते हैं। जब भी आपको बहुत गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से बहुत स्वेटिंग होती है, एंड उस स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से जो वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर है, वो आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ओके, जितने भी सब टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी सब डस्ट होता है आपकी बॉडी में, सब रिमूव हो जाता है थ्रू दी स्वेट। एंड in the last topic we learn about that the reproductive system helps produce babies। जो reproductive system होता है वो हमको अपने ही काइंड के बेबीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जैसे बॉडी के बाकी पार्ट्स अपने डिफरेंट टाइप से अपनी आप से वेस्ट को आउट करते हैं, सिमिलरली दी लंग्स एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो लंग्स होते हैं वो वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, थ्रू आउट करते हैं हमारी बॉडी से। ओके, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डेंटल हाइजीन। डिड यू लूज एनी ऑफ योर टीथ? क्या आपने कभी अपना टीथ खोया है? कभी कोई टीथ आपका टूटा है? काउंट हाउ मेनी टीथ्स यू हैव। नाउ यू ऑल विल काउंट योर टीथ्स एंड टेल मी कि आपके कितने टीथ्स हैं। ओके, दे आर योर मिल्क टीथ एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ्स। यानी अभी जो आपके माउथ में जो टीथ्स हैं, दे विल बी मिल्क टीथ। आप सभी के माउथ में भी मिल्क टीथ होंगे और वो जल्दी ही परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी मिल्क टीथ टूट जाएंगे और आपके परमानेंट टीथ्स आ जाएंगे। However, after that you should take care of your teeth as they will not be replaced। और उसके बाद आपको अपने टीथ्स की बहुत अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि टेम्परेरी टीथ्स वापस आ जाते हैं, बट जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो कभी भी रिप्लेस नहीं होते, दे विल नॉट बी रिप्लेस्ड। सो टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। सम टिप्स ऑफ टेक केयर ऑफ़ योर टीथ आर, यानी आपको अपने टीथ्स की अच्छे से टेक केयर करनी है, देखभाल करनी है, और कुछ टिप्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। Here are the 3 ways। फर्स्ट इज़ ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में 2 बार आपको अपने टीथ्स को अच्छे से ब्रश करना है। सेकेंड इज़ डू नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट्स। सो स्टूडेंट्स, एवरीवन नो दैट डू नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स आपको नहीं ईट करनी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ हैव मिल्क एवरी डे। All the students will drink milk every day because milk is rich in calcium and calcium makes our teeth and bones strong, which are very good for our teeth and bones. Okay, because milk is rich in calcium. So I hope now all the topics are clear to you. The reading portion of this chapter and the explanation part is also completed now. If you still have any doubt, you can ask me personally or in the live class. Okay, your homework is to read all the topics we have covered in today's class. Till then, thank you and have a nice day.